how our physical well-being, self-worth, and societal pressures shape our relationship with ourselves and, more importantly, our bodies. Joining us for this session is Dr. Shiv Kumar Sareen. Dr. Sareen is a globally respected hepatologist and the founder director of the Institute of Liver and Biliary Sciences, New Delhi. A Padma Bhushan awardee, he's played a transformative role in advancing healthcare, research, and public awareness in India. His work goes beyond medicine, engaging deeply with preventive health and human dignity. Let's welcome Dr. Sareen with a loud applause. Round of applause, yes. As the moderator, we are delighted to have Mr. Ashok Lavasa ji, जिनसे हम पहले भी मिल चुके हैं. Mr. Ashok Lavasa ji is a former election commissioner of India and a senior civil servant with decades of experience in governance and public policy. He has also served in international leadership roles, including as Vice President of the Asian Development Bank. His career reflects a strong engagement with institutions, ethics, and human development. उनका पर्सपेक्टिव इस बातचीत को एक ब्रॉडर सोशल और पॉलिसी लेंस देता है, जहां हेल्थ एक पर्सनल कंसेप्ट नहीं बल्कि एक सोसाइटल कंसर्न बन के सामने आती है. एंड I'll request the gentleman to please begin the much-awaited discussion with a round of applause from everybody. Thank you so much. Thank you and good morning, everyone. I thank Bhopal Literary Festival for this amazing opportunity that all of you have to listen to one of the most renowned doctors in the world, Dr. Shiv Kumar Sareen. तो इससे पहले जो सेशन हो रहा था उसमें बच्चों की बाल कहानियों की बात हो रही थी, तो मुझे याद आया कि आज से बिल्कुल 60 साल पहले जब मैं स्कूल गया तो स्कूल के अंदर एक चीज़ लिखी हुई थी, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट everything is lost. We are not going to talk about character, we'll talk about health. And the other popular saying which all of you must have heard is a healthy mind resides in a healthy body. और आजकल इतना proliferation gyms का और beauty parlors का हो रहा है that it seems that health consciousness is going up. Even the Prime Minister has, I think, at least on 3 occasions announced that we should be conscious about depression, we should be conscious about diabetes, and we should introduce millet in our food habits. So ये है क्या? What is a healthy mind and what is a healthy body? Before I turn it over to Dr. Sareen, I want to narrate to you a very small incident. When I was in the Ministry of Finance as Joint Secretary, so we had an additional secretary, and he would ask me कि तुम सुबह उठ के क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं वॉक के लिए आता हूँ. ये क्या करते हो वॉक वगैरह सुबह? मैंने कहा सर haven't you heard that an early bird catches the worm? He said वो तो मैंने सुना है, लेकिन think of the worm, अगर वो सोता रहता घर में तो उसको कौन पकड़ पाता? तो अब ये it's a very complicated thing, and I think for answering many of these questions, you need to read this wonderful book called Own Your Body, and we have Dr. Sareen to answer your questions, to address and to educate us on what exactly it is. Now, one of the things I must warn you is that being a leading doctors in the world, he says that don't outsource your health to doctors. तो डॉक्टर साहब, अच्छा दूसरी एक चीज़ और है कि ये इस किताब में जो blurbs लिखे गए हैं, तो one of the blurbs is by one of the wealthiest man in India and in the world, and he has recommended this book. और एक शख्स ने ये भी कहा है कि reading this book can save your life. So I think it's a very serious thing, and I want to turn it over to you, Dr. Saab, कि ये
प्रिस्क्रिप्शन लिखते लिखते किताब लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मतलब डॉक्टर्स तो बड़े साइंटिफिक और मेथोडिकल लोग होते हैं, लिखना विखना इमोशनल किस्म का काम है, तो आप इस झमेले में क्यों पड़ गए? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मैं राघव जी का और BLF का शुक्रगुजार हूँ और अशोक से गुफ्तगू के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था। ये बात सही है कि उस ज़माने में शायर मतलब जिसका दिल टूटा हो वो शायरी लिखेगा, या जो प्यार में हो वो अब और चीज़ें लिखेगा। तो लिटरेचर वाज रिलेटेड टू इमोशंस, बट एक्चुअली इट इज़ अ फैक्ट, and this book is written out of passion and out of a feeling that yes, as a doctor you are useless, because you treat people when they come to you when they are unwell. So a good doctor should try to prevent. And every time when I would see a patient, sir मेरे पिताजी को ये था, मेरे को ये है, तो मुझे लगता था कि यार पिताजी ने इसको समझाया होता तो शायद ये बीमार नहीं पड़ता। या लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आया है और साथ में डोनर है, उसका भी लिवर ख़राब है। सर मेरे अंकल का भी ट्रांसप्लांट हुआ था, अब आपके पास। नाउ द फैक्ट रिमेन्स दैट पीपल, अब कल रात की बात है, एक मुझे आपके बहुत बेहतरीन बंदे हैं यहाँ पे जो मुझे मिले कि सर मेरे दांत में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, ये दांत का चिप टूट गया, तो दवाई ख़रीदने के लिए रुके रात को फेस्टिवल में। तो मैंने कहा आपको पहले कभी दांतों के बारे में ख्याल नहीं आया था? बोले नहीं। मैंने कहा जब चली जाती है चीज़, जब हेल्थ चली जाती है तब लगता है कि हम क्यों नहीं पहले से तैयार हुए। सो दिस बुक स्टार्ट्स द जर्नी फ्रॉम द मदर व्हेन शी कंसीव्स टू द चाइल्ड हु इज़ बोर्न एंड देन ही ग्रोज अप, एंड द जर्नी इज़ टू कनेक्ट यू टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन। So the whole book revolves around and the emotion behind, आपने कहा ना क्यों लिखी, इसलिए कि every time I see somebody who is unwell, I see we have failed as a doctor. So this book is not to say that doctors should not do, but own your body, make sure. Do you agree with this or no? You all want to own your body? That's a great sound. दोनों हाथ उठा के जो कहता है ना वो पक्का ठीक होता है। तो डॉक्टर साहब सवाल ये है कि ओन योर बॉडी, भाई किसी ने बनाई मेरी बॉडी तो मैं क्यों ओन करूं? गॉड क्रिएटेड माय बॉडी एंड उसके अंदर ऐसी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कोई डिज़ाइन बनाई है जो हमारे समझ में तो आती नहीं है, उनको पता नहीं समझ में आती, लेकिन डॉक्टर्स को समझ में आती है। तो सवाल ये है that one of the things which I really liked about this book and the comments that were made, it was said that this book has lot of scientific wisdom. अब ये अपने आप में विरोधाभास है या नहीं कि साइंस भी है और विजडम भी है? तो wisdom obviously is something which you distill out of knowledge and experience. And as you very rightly said कि ये किताब कहानियों के ऊपर निर्भर है, सारी उसी से पैदा हुई है। तो आप कृपया करके ये समझाएं कि द बॉडी विच आई हैव नॉट क्रिएटेड एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो मैंने क्या ठेका लिया हुआ है? आपका OEM कौन है? ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। अब मुझे क्या पता कौन है? क्यों मदर फादर? हाँ, तो फिर मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? Why should I be responsible? Absolutely correct. मैं क्यों? So आप में से जिनकी शादी नहीं हुई, आप इधर वालों की तो नहीं हुई लगती, जिनकी शादी नहीं हुई है उन सारों की ये जिम्मेदारी है कि शादी से पहले अपना रॉ मटेरियल ठीक करें, नहीं तो प्रोडक्ट। अच्छा जैसे मारुति है, जरा सा, नहीं मारुति नहीं, जैसे फोर्ड है, उसके जरा सा गियर में कुछ गड़बड़ हो, सारी 2 लाख गाड़ियां बुला लेते हैं। कैन यू ब्रिंग बैक द चाइल्ड हु इज बॉर्न? इज ऑलरेडी बॉर्न, आप उसको रिवायर थोड़ी कर सकते हो। So the first message in this book, and I really want you, इसमें 291 पेज पे 10 commandments, और the first commandment is make your family tree. हम सोचते हैं यार पिताजी से ज़मीन मिली और दादाजी से ये मिला, नाना जी से खेत मिल गया, एक गाड़ी मिल गई, और ये कभी नहीं सोचते कि मेरी मदर को क्या था, मेरे फादर को क्या था। सिमिलरली वाइफ के लिए
उसको उसके परिवार से क्या मिला. तो everyone, my message clear is that you should make your family tree and you should find out कि उनके यहाँ डायबिटीज़ थी, उनके यहाँ ब्लड प्रेशर था, मुझे क्या मिला, मेरी वाइफ के पिताजी को ये था, माताजी को उन्हें क्या मिला, तो हमारा बच्चा जो पैदा होगा उसे क्या मिलेगा. डू यू एग्री विद दिस? कभी सोचते हैं आप इस बारे में? नहीं सोचते. अब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, 3 साल का बच्चा आया, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया. 3 साल के बच्चे में, सर कभी सुना ही नहीं हमने. दिस इज व्हाट यू विल सी एंड दीज आर कॉल्ड वॉकिंग जीन थ्योरीज. अब बच्चा 10 साल का है, पैदा हुआ और 10 साल तक कभी उसको हेल्थ एजुकेशन नहीं है. तो बच्चा माँ बाप से नहीं पूछेगा कि यार आपको डायबिटीज़ थी, आप इतने हेल्दी थे, फिर क्यों मुझे पैदा किया. The child has a right to ask the parents and he should have, she should have a right, if you were unhealthy, why did you produce me? You should have become healthy, then you should have produced me. And this is a fact, this book, the whole thread of the book is around that. I'll give you some examples. जैसे अगर दोनों पेरेंट्स ओवरवेट हैं या ओबीज हैं तो 97% चांस है कि बच्चा ओवरवेट होगा. पानी उसको घी की तरह लगेगा. वो कहता है सर मैं कितना ही दौड़ लूँ मेरा वजन ही नहीं कम होता. मैं सर इतना सा खाता हूँ. बिल्कुल. अब इसमें पहली स्टोरी है, देयर इज ए जंबो ग्रुप एंड ऑल दीज आर रियल स्टोरीज बट द नेम्स हैव बीन चेंज्ड. So this guy is IIT graduate who was going abroad and came to me when he was 27. 100 कुछ kg का था. मैंने कहा यार तेरी तो हेल्थ ठीक नहीं है, तू तो MIT में नहीं जा सकता. उसकी मदर वाज ए प्रोफेसर इन IIT, सिंगल मदर. एंड उसने कहा कि नहीं आप पूरा चेक करिए, जब तक आप नहीं कहेंगे नहीं जाएगा. मैंने कहा इसकी तो लिवर बायोप्सी होगी, इसका तो लिवर एकदम एडवांस्ड ख़राब है. एंड द बॉय वाज हेल्दी. नाउ मदर इंसिस्टेड कि तू पासपोर्ट जाने से पहले चेक करा और उसके बाद में बायोप्सी करा. बायोप्सी की एंड दिस बॉय हैड एडवांस सिरोसिस ऑफ लिवर एट 27 फॉर नो मिस्टेक ऑफ हिज एक्सेप्ट दैट ही वाज ओवरवेट. और वो उसका पेट भरता ही नहीं था. ही वाज नेवर एबल टू स्टॉप. फॉर्चुनेटली द बॉय अंडरस्टूड एंड बिफोर ही लेफ्ट ही अंडरस्टूड. 3 साल बाद जब वापस आया he was leaner, fitter and his cirrhosis has come down. The credit goes to the mother who is still teaching and she says thank you doc. And now for me the best part is जब इस लड़के ने कहा सर अब मेरी एक गर्लफ्रेंड, पहले कोई गर्लफ्रेंड बनती ही नहीं थी, 115 किलो का था, कोई मानता ही नहीं था. अब कहता है सर मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है, नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरिज. आई सेड नहीं तू शादी कर लेना, बच्चे मत करना. कहता है क्यों? मैंने कहा 10 साल वेट करना. इफ यू आर अनहेल्दी डोंट प्रोड्यूस किड्स टिल यू आर हेल्दी फॉर 10 years. इफ यू आर 110 ब्रिंग डाउन. अब जैसे ऐसा पतले हो जाओ, भाई तुम्हारा कितना है वेट, तो हाइट कितनी है? 6 feet. तो दिस गाय आई मीन खड़े हो एक बार, ऐसा रोल मॉडल बन जाए. अब एक वो दूसरी है जो भी अनाउंसर है, दोनों ही खड़े हो सकते हैं. Both of you are role models and Saloni is also a role model. So all of them, so the whole idea behind is, Ashok you will agree, पहले कहते हैं पतली कमरिया. Same style में, do not produce children till you are healthy. You have no right to spoil the next generation of India. But Dr. Saab, I think you are being very unfair because you are declaring almost everyone guilty of having children without knowing whether we are perfect. इस किताब से पहले का है ना वो, अच्छा, तो इंडिपेंडेंस से पहले तो और इंडिपेंडेंस के बाद नाउ दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट. तो अब डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई बच्चे को हक है ये पूछने का कि भाई क्यों, जब आप में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था तो मुझे क्यों पैदा किया. ठीक है ना. तो आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ एन इंसिडेंट वेयर अमिताभ बच्चन व्हेन ही नरेटेड दिस इंसिडेंट के जब यंग डेज में उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, बड़े मायूस होकर घर आए और उन्होंने अपने पिताजी से यही सवाल किया कि आपने हमें क्यों पैदा किया, तो हमसे पूछा क्यों नहीं. तो उनके पिताजी ने कहा कि अच्छा तो ऐसा करना कि तुम अब जब बच्चे पैदा करें तो अपने बच्चे से पूछ के उसको पैदा करें. तो खैर
The very interesting ये concept. अभिमन्यु के साथ हुआ था ना, वो जब पेट में था तो उसको सारा पता था। हो सकता है आप अगर ये शुरुआत नहीं, करें, लेकिन वो जो चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आता था हाँ उसको। वो उसी समय तो तक वो गड़बड़ हो गई। आप सिखाएंगे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। तो बात यह है कि डॉक्टर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसके अंदर निकाली है। जैसे हम लोग जन्म पत्री कहते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं जीन पत्री होनी चाहिए। और बट एक चीज़ है डॉक्टर साहब, दैट aren't you being a little harsh when you say that you are liking human beings to automobile? तो भाई ऑटोमोबाइल के जज्बात तो नहीं होते, इंसानों के तो जज्बात होते हैं। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, हाउ डू यू रिकंसाइल दीज थिंग्स, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो इमोशनल इन नेचर। तो आपने अपनी किताब में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स, लाइफ लाइन्स के बारे में बात की, तो ज़रा उसके बारे में पहले बताइए। दो बातें कहूँ। आप जैसे स्पेस क्राफ्ट है, आपने लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद में मिड वे में क्या आप करेक्शन कर पाते हो? नहीं, वो तो ब्लास्ट हो जाता है। एवरीथिंग इज प्री डिज़ाइन, प्री डिटर्मिन्ड एंड सेट बिफोर यू लॉन्च ए स्पेस क्राफ्ट और ए कार और समथिंग। फॉर ह्यूमन बॉडी this is an everyday process, and therefore earlier you understand the discipline of life. छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट अगर बचपन से करें तो आगे जाकर के इट बिकम्स एन इनक्रेडिबल वेल्थ, और छोटा छोटा आप इनडिसिप्लिन करें तो इनक्रेडिबल पेनल्टीज। सर वो तो 35 का था, चलते चलते ही गुड़क गया। अरे भाई कैसे गुड़क गया, क्या हो गया था उसको? सर पता नहीं, वो जिम गया था, थोड़ा सा उसने पहली बार में इतनी एक्सरसाइज कर ली तो उसकी तो डेथ ही हो गई, बिकॉज ही नेवर इन्वेस्टेड फ्रॉम। सो माई मैसेज इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अर्ली एज इन द चाइल्ड, एंड रिमेंबर 10% अब टिल 10 years of age 50% उसका काम खेलना कूदना एक्सरसाइज करना है। पढ़ना इज़ ए लाइबिलिटी, उसके लिए हेल्थ एजुकेशन शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट। और यू एग्री विद दिस? विल मध्य प्रदेश स्टार्टेड? भोपाल लिटरेरी फेस्टिवल का बिगेस्ट मैसेज है मेरे लिए कि हेल्थ एजुकेशन इन फर्स्ट 10 years इज़ ए बिगर एजुकेशन देन स्कूल एजुकेशन। अब इसके बाद आपने जो कहा कि क्या हम लोग नहीं, मतलब इतना ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा हार्श होना, ये हार्शनेस नहीं। अब मैं इस किताब के अंदर एक एग्जाम्पल दूंगा। एक लड़की थी, इसे रियल फैक्ट, बिल्कुल मतलब ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट कॉपी। 15 साल की थी और उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। उसकी माँ आई साथ में, और ठकुरानी मतलब राजस्थान के एक ठकुराने घर से थे। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या इस लड़की का तो सर्जरी करना पड़ेगा। फादर ने बड़ी विनती की, मत करो साहब, निशान हो जाएगा। मदर ने कहा, मैंने कहा अच्छा मदर का भी टेस्ट कर लेते हैं। वो बोली मेरा 39 ईयर है, किया, उसके भी गॉल ब्लैडर में स्टोन था। How did this girl 15 years suffered? Because her mother had fatty liver and she was a ठकुराई। बोला ठाकुर है, पूरी उनकी रियासत होती थी एक छोटी सी, खाओ पियो, 2 मुर्गे 2 बोतल, वो ऐसा वाला हाल था। Now this mother honestly took to social media, उसकी लड़की की सर्जरी हुई, and she in the biggest best school in the valley made sure that every mother, every child understands कि यार ये बीमारियाँ जेनेटिकली हो सकती हैं, अपनी हेल्थ करें। अब उस बच्ची जो 15 साल वाली, शी हैज़ बिकम ए फिल्म स्टार इन दिस एरिया, दैट डू नॉट लेट योर गॉल ब्लैडर बिकम स्टोन वर्दी, डू नॉट अलाउ, एंड दिस बिकम्स, यू हैव फैट इन द लिवर, दिस फैट विल गो एंड डिपॉजिट इन टू द गॉल ब्लैडर। प्लीज रिमेंबर, an extra fat in the liver which is genetic and because of your indulgence from early age। हर बर्थडे पे 4 केक, साइज ऑफ द केक 4 साल का है 4 किलो का केक, 5 साल का है 5 किलो का केक, ऐसा होता है। तो उसके हिसाब से मेक श्योर दैट द फैट इन द लिवर डज नॉट गेट डिपॉजिटेड इन गॉल ब्लैडर। दैट फैट विल गो एंड सर्कुलेट एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन योर आर्टरीज, यू गेट हार्ड आर्टरीज एंड ब्लड प्रेशर। That fat is the cause that you do not get insulin in the liver and you get diabetes. So diabetes is a liver disease. Fatty liver is the basic cause for hypertension, heart disease, kidney disease. And the simplest way, as
my colleague here, the anchor said, remain underweight. If you are underweight, half the problem is over. और उसके लिए बड़ा है, अब जैसे आप भोपाल में आ जाओ, इतनी बढ़िया होटल में रुको, अब खाना नहीं खाओ तो लोग कहते हैं यार कैसा आदमी है। नहीं तो आप जैसा करो ना, जिम में जाते हो और दौड़ लगाते हो। लेकिन वो जो 4 लाइफ लाइन्स आप हाँ। बताते हैं वो ज़रा बताइए। 4 लाइफलाइंस जो हैं इस बुक में, 50 टिप्स हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ईच वन ऑफ यू, 100 कितने लोग 100 साल जीना चाहते हैं, हाथ उठाएं। और हेल्दी जीना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाएं। सब हेल्दी जीना चाहते, इस किताब को पढ़ें। इसमें 50 ऐसे टिप्स हैं। और पहला टिप है कि नहाने के बाद डेली अपना वजन तोल लें। एवरी डे कीप ए वेइंग स्केल एंड वे योरसेल्फ. Weigh in grams, if possible less than grams. Do not allow खर्चा ज़्यादा कमाई कम. इसका पहला टिप है, जो लाइफ लाइन है वो, मैं कौन बनेगा करोड़पति, उसका ही एक लाइफ लाइन है कि you have to remain slim and fit, agile and young. अब जैसे पहले इंडियन टॉयलेट्स होती थी, आप उकड़ू बैठते थे और खड़े होते थे। अब वेस्टर्न टॉयलेट्स, अगर आप बैठ के खड़े नहीं हो सकते तो गए जोड़ आपके। तो रिमेंबर व्हाट यू यूज द बॉडी विल यूज, इफ यू डू नॉट यूज द बॉडी विल नॉट यूज। देयरफॉर फर्स्ट इज टू रिमेन स्लिम एंड फिट। एंड स्लिम के बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं। आई नो यहाँ बहुत बढ़िया फैशन है, बट आप देखोगे, एंड भोपाल हैज़ डन द बेस्ट इन द कंट्री एज फार एज स्क्रीनिंग, यू नो। तो अगर आप अपनी कमर नापें, फीमेल की कमर 80 सेंटीमीटर और मेल की 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं। कितनों की 80 से कम है? एनीवे कोई देख नहीं रहा है। आप ना वैसे भी हाथ खड़ा कर देंगे, कोई जना नहीं पकड़ेगा। सो फॉर ए मेल less than 90, because it is this fat which makes you bad. The message is do not allow this. पुराने ज़माने में हलासन होता था, अब कोई करता ही नहीं। The best आसन you have. So my message to you is, and if you want to own and remain healthy for 100 years, remain absolutely thin at your waist area. So fit means you have to do exercise, and there is a very simple formula, and I know you love it. Is called talk test. मतलब आपसे पूछे आपका क्या नाम है, आप मेरा नाम सर शिव कुमार। आप एक्सरसाइज करें और एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पाए, प्लीज एक्सरसाइज टिल दैट लेवल इफ पॉसिबल, इफ नॉट ग्रेजुअली इंक्रीज इट। एंड दिस इज द वे द लंग्स एंड द हार्ट शुड बी। एंड द सेकंड लाइफ लाइन इज ऑफ कोर्स व्हाट टू ईट, when to eat and how much to eat. And remember, start with a dessert plate, not with a full plate. तो डॉक्टर साहब, इफ़ आई कैन इंटरप्ट यू, और ये जो बात खाने की चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैलेंस भी होना चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन ये जो आप डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई दवा दारू कर लिया, दारू नहीं कहते, ये कहते हैं ना? नहीं, वो तो लोग कहते हैं दवा दारू। डॉक्टर कब कहते हैं दवा दारू कर लिया? कमाल करते हैं। नहीं तो आप क्या ये कह रहे हैं कि वो दूसरा वाला छोड़ दिया जाए बिल्कुल? नहीं मैं वो कफ सिरप में मिला के लोग पीते हैं, कोई कैसे लेते हैं। बट यस, अल्कोहल बेटर अल्टरनेटिव्स आर देयर। अल्कोहल इज ए सोशली एक्सेप्टेड पॉइजन, सो आई वुड ओनली रिपीट सोशली एक्सेप्टेड पॉइजन। आई थिंक आवर टाइम इज कमिंग टू एन एंड। है अभी Okay. एक नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ। Do you have a question? Start. Anyway, all right, okay. नहीं अभी तो अशोक की बात नहीं पूरी हुई। अशोक, नहीं मैं before we have the question round, there is one thing which I think I want Dr. Saab to explain, and that is that he is a founder director of the Indian Institute of Liver and Biliary Sciences. अब ये लिवर क्या बला है? मतलब जैसे हम पहले कहते थे कि दिल लो, जिगर लो, जान लो, या कलेजा, जिगरी दोस्त होता था। हाँ जिगरी दोस्त होता था, या कोई ताकतवर नहीं है उसको कहते हैं यार तेरे में जिगरा नहीं है। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू अस कि ये बहुत है बढ़िया क्या? सवाल है। आज और से साथ साथ आप लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी कुछ बताएं।
लगभग क्राइस्ट से 2000 साल पहले जो मंदिर बनते थे रोम में या ग्रीस में, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ रखी जाती थी, वो लिवर था। 2000 ईयर बिफोर, एंड दिस इज़ द वे। अगर आपका लिवर सफ़ेद है तो उसे कहा जाता है लिली, कावर्ड लिवर। ए लिली लिवर और ए कावर्ड लिवर। लिवर वॉज वर्शिप्ड टिल अबाउट 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में हार्ट का पता लगा। हार्वे ने कहा कि यार ये भी कोई चीज़ है, अदरवाइज सब कुछ जिगर ही था। अब आपको याद हो कि हु ब्रॉट द फायर टू मैनकाइंड? प्रोमीथियस। तो दिन के अंदर उसका निबल करता था वल्चर लिवर, रात को सो जाता था, सुबह नया लिवर बन जाता। क्या बात। And this is a fact. If you allow rest and do not eat at night, the liver will regenerate. Number 2, you can donate your liver. 60% of your liver I can donate you or anybody, and it will grow back in about 4 weeks time. जैसे बाल काटते हैं दोबारा. How many of you will become donors? Raise hands. Everybody. If you want your DNA to live in the next generation for immortal time, आपका लिवर किसी में लगा तो आपका डीएनए चलता ही जाएगा, पुश्त दर पुश्त चलता जाएगा। तो लिवर ट्रांसप्लांट इज ए रियलिटी, डू इट, बट ऑल्सो रिमेंबर यू हैव टू लव योर लिवर। डोंट इंसल्ट। एक समय तक तो झेलेगा, उसके बाद में दगा दे देगा। डोंट इंसल्ट इट एवरी डे by alcohol or by fat. That's So can we now turn it over to Yes. the audience? That's really The some scientific gentleman wisdom. right at the back. Thank you, Dr. Saab, for the lovely talk. One by one. हाँ बोलिए आवाज आ रही है। So the first question is that when we have, say, there is fat accumulated in the body, right? Undoing that, they will require discipline. But if there is fat accumulated on the organs, can you tell us that what can be done to undo that? Because that damage is done. So that is the first question. I can only allow one question. बहुत सारे सवाल हैं, Just one please try to understand. And Okay, हम second- उसका आंसर second- लेंगे। Just Fat one in the second. liver, Yes. fat in the liver That's is because of overweight, but mainly genetic. And sugar, your sugar goes to two places, one to the muscle, one to the liver. If your muscle is working, the sugar will be burnt there. Remember it. If you are exercising, that sugar is gone. But if you are not exercising, this sugar goes to liver. वो कहता है यार बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, उसे फैट बना देता है. So the fat in the liver is not by fat what you eat, but it is the sugar. The culprit is sugar. Keep total sugar in the diet to 5 to 7% of your calorie requirement. आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है, उसका 5 से 7% शुगर हो, नहीं 5 ऑरेंजेस खा लिए, शुगर कोटा खत्म हो गया. इट इज़ ऑल इन द बुक. आपका यूरिक एसिड हाई है, सर मेरे तो प्रोटीन कम. इट इज़ यूरिक एसिड इज ए शुगर, इट इज़ फ्रुक्टोज. So remember, if you have a high uric acid, it is because you have eaten too much maize, you have eaten too much of, sauce which has corn syrup. So that is the crux of the matter. Thank you, please सामने। सर फैटी लीवर की प्रॉब्लम एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा हो रही है। माइक पकड़ बच्चों में लीजिए, देखने please. में आ रहा है, और यदि ये बच्चों में होता है तो कैन इट लीड टू द सीरोसिस? इन 80s के दशक में इंडियन चाइल्डहुड सीरोसिस वाज वेरी कॉमन. नाउअडेज प्रोबब्ली इट इज नॉट सीन. व्हाट इज योर Okay. एक्सपीरियंस सर? फैटी लिवर बच्चों में सबसे पहले, अगर बच्चा पैदा हो और 6 महीने में उसे आपने टिंड फ्रूट जूस दिया, मैंगो जूस 6 महीने में, 5 साल तक के बच्चे में फैटी लिवर हो जाएगा. 2 साल के बच्चों में 4% और 5 साल के बच्चों में करीब 13% में फैटी लिवर है. एडल्ट में ज़्यादा बढ़ा नहीं, लोगों को थोड़ी समझ आ गई है. एंड आई एम श्योर आपके माध्यम से हर आदमी अपना फैट लिवर का कम करेगा. हाइट -100 फॉर मैन. जैसे इनकी हाइट है 6 फुट, उसको इंचों में करें. 1 इंच का 6 फीट मीन्स हाउ मेनी इंचेस? 12 inches. नो, Oh, sorry. 72, yeah. 72. उसको आपने 72 को एवरी 100 पाउंड्स यू मल्टीप्लाई एट 6 पाउंड. जैसे आपकी अगर हाइट है 5 फीट 10 इंच, तो आपने उसके अंदर ऐड कर देने 60 पाउंड्स. पर सिंपल फॉर्मूला इन सेंटीमीटर इज हाइट -100 फॉर मैन एंड हाइट -105 फॉर ए वुमेन. पर अगर मदर फादर को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो 5 किलो और कम. फैटी लिवर, Okay, please माइक पीछे पास कर दीजिए, मतलब दिल please. बड़ा होना चाहिए, जिगर बड़ा Like- नहीं. दिल बड़ा होना चाहिए देने के लिए.
Yes. Quick question, please. Sir, good morning, sir. Myself, Dr. Anuja Saxena. Where are excuse you? me, वहाँ sir. उधर खड़े हो okay, जाइए, all please. right. नहीं खड़े Sorry, मत sir. हो। एक्चुअली मैं अभी आपने अभिमन्यु की बात करी थी, तो उसमें था कि आपने कहा कि जेनेटिक पहले से ही आपको प्लान कर लेना चाहिए कि कैसा वेट है। तो क्या कभी जैसे अभिमन्यु को उसके जो एनवायरनमेंट से उससे फ़र्क पड़ा था, बहुत। तो क्या जेनेटिक के अलावा भी कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको आपको अफेक्ट कर सकते आई हैं? एम सो हैप्पी यू आर अ डॉक्टर। अगर मदर को ये टुडे दिस इज पब्लिश टुडे मॉर्निंग इन द बेस्ट जर्नल कॉल्ड नेचर। नेचर के अंदर आज सुबह मैंने पढ़ा, अगर मदर को ब्रोंकियल एस्थमा है तो उसकी एंटीबॉडीज बच्चे में जाएंगी, पॉल्यूशन के कारण एस्थमा है। और जो बेबी होगा, दिस इज एनिमल माउस एक्सपेरिमेंट, द बेबी विल हैव एस्थमा मच अर्लियर। So everything what mother has is processed and goes to the baby. And therefore, to read what your child will be, the parents have to be exceptionally careful in wiring. If they are overweight, if they are indulging into different things, the child will suffer for rest of the life. ठीक है, यहाँ से so sorry, no cross question please, time बहुत कम है, very sorry ma'am, very sorry, next question please, very sorry. सर मैं डॉक्टर मनोज वर्मा, आई एम डायरेक्टर टीबी सेंटर। सर जितना हार्श आपने लिखा है उससे ज़्यादा हार्श मेरा क्वेश्चन है। आपने बोला मेरे पेरेंट्स ने जेनेटिक टेस्टिंग नहीं कराई, मुझे पैदा कर दिया। नाउ यू आर सेइंग आई हैव टू गो फॉर द जेनेटिक टेस्टिंग। अगर मैं फेल होता हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरी वाइफ हेल्दी है, बच्चे नहीं करे, तो क्या हम माता पिता के सुख से वंचित रहें? उस फेज में जबकि बच्चा आज जो मेरा पैदा हो रहा है, सर्जरी इतनी एडवांस हो रही है, मेडिसिन इतनी एडवांस हो रही है, definitely after 30-40 years medicine science will be somewhere else. Immediately treat it that time. I'll briefly answer. So now Thank you. the genotype is, since you are a doctor, but for सब लोगों के लिए there is called PHEVAS, phenotypic, you know how you will become. The simple message is, अगर आपकी गाड़ी सपोज करिए उसमें हवा कम है पहिए में, तो आप धीरे चलाओगे। अगर आपकी गाड़ी में खराबी है तो धीरे केयरफुल रहोगे। तो मैसेज इज, इफ यू आर वायर्ड जेनेटिकली डिफरेंटली मैन्युफैक्चर्ड, यू आर ए डिफेक्टिव पीस, रिमेंबर यू हैव टू वर्क हार्ड। तो इस बुक की जो 3 बातें हैं कि आप रेड लेन में हैं, आप येलो लेन में हैं कि ग्रीन लेन में। येलो लेन में, रेड लेन का मतलब मदर फादर डिफेक्टिव, मैं भी डिफेक्टिव, और मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया हेल्थ के लिए, दौड़ा नहीं, भागा नहीं, खाना ठीक से नहीं किया। आई एम गोइंग टू हैव दिस डेस्टिनी। The yellow lane is mother fathers are defective, but I am healthy because I am working out every day, my diet is careful. And the third is mother father भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है ग्रीन लेन वाले की, यार ज़िंदगी भर ग्रीन में रहूँ, बच्चे भी ग्रीन लेन वाले हों। येलो वालों की जिम्मेदारी है कि मैं येलो के जगह से मेरे बच्चे ग्रीन लेन वाले, और रेड वालों की जिम्मेदारी है कि मैं आज से शुरू करूँ येलो और हो सकता है ग्रीन में। देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट, the whole preface of the book is written on this, how you are manufactured you should know, and plan for your grandchild. You have to live for your grandchild. बच्चे तो हो गए, उनके बच्चों के लिए आपको, this is a science paper 2013, live for your grandchild, because for the child everything has been done. Thank I you. hope it ends. Gentleman here and Good then morning. Good morning, followed sir. by lady. There. गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ नवदीप प्रकाश अग्रवाल, मैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ। हालांकि आपकी किताब पढ़ने के बाद तो ज़रूरत नहीं है किसी मेडिकेशन की, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी लालच है, क्या हम ILBS की ब्रांच भोपाल में देख सकते हैं इन फ्यूचर? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देगा, पर मैं बहुत खुश होऊंगा। आई विल बी माई हैप्पीनेस। पर बाय द वे, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स अपना लिवर कैसे हेल्दी करते हैं? इतने सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाउ डू यू कीप योर लिवर हेल्दी? मैं बताऊं क्या करते हैं? 1-2 आपके लिए नुस्खे हैं कि लिफ्ट इज फॉर पेशेंट्स, स्टेयर्स आर फॉर पीपल, नॉर्मल पीपल। कभी सीढ़ी नहीं, आपने लिफ्ट नहीं लेनी। अगर इतना सा याद रखेंगे ना, चाहे 10 बार जाना पड़े, बट रिमेंबर। और दूसरा, ईट। सपोज सर मेरा तो इतना टेंशन है, डॉक्टर अशोक जी इतना डांट लगा देते हैं, ये इतना कर देते हैं। स्ट्रेस इज ए वे ऑफ लाइफ टू रिएक्ट, इट इज़ नॉट ए कॉज ऑफ फैटी लिवर। ज़्यादा स्ट्रेस हो, थोड़ा सा घूम लीजिए, और उसके अलावा अवॉइड ईटिंग एज ए वे आउट। तो डॉक्टर साहब, मैं एक इसमें
I think it will be very good for the audience, a lot of youngsters. आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है कि प्रोटीन्स खाओ, सप्लीमेंट्स खाओ, हेल्दी रहने के लिए. उसके बारे में आपकी कोई राय है? खाते हैं क्या लोग प्रोटीन्स हेल्दी रहने के लिए? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा खाते बहुत ज़्यादा खाते हैं. Yes, I am a Yeah. clinical nutritionist. I had 2 questions. One was regarding these protein supplements. Besides that, I take histories and I find to my horror, Gen Z not sleeping before 2 or 3 in the morning. So what is the impact of that? I would like you to please, This talk is the about third this. lifeline. Yes. Thank कि you for साहब that ए question. रेस्टोरेटिव Wonderful. स्लीप, रेस्टोरेटिव स्लीप में आपको बिल्कुल अपनी दिनचर्या रखनी है कि 10 बजे सोएं और 4 या 5 बजे उठें. यू विल ऐड लाइफ एज वेल एज ईयर्स टू योर लाइफ. देयर इज नो डिनायल and the 2017 Nobel Prize was on this, on the clock genes. And coming to proteins, you take protein as a food. Do not take protein as a supplement. Thank Supplement तो उनको देते हैं ना जो सब्सिडी वाले, जैसे गरीब हो, खाना नहीं मिला, सप्लीमेंट ले लो यार. तो ऐसा मत करना. अच्छा खाना खाना. And vegetarians have good proteins. On the right, please. हेलो रिस्पेक्टेड सर, आई एम मैराथन रनर. एथलीट के रूप में मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना हाँ. चाहूँगा सर कि अभी हमारे लाइफस्टाइल में हम लोग जो पाम ऑयल खा रहे हैं, पाम ऑयल एक ऐसा सप्लीमेंट है जिससे हमारा फैटी लीवर और सभी चीज़ों को. हाँ. सर मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग डिटॉक्स कैसे करें हमारे फैटी लीवर को, जिसकी वजह से हम लोग हमारी एक्टिविटी डेली रूटीन लाइफ में हम लोग अपना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर सकें. Okay, thank you. देखिए पाम ऑयल जो है, इनफैक्ट इट्स ए वेरी सैचुरेटेड, वेरी थिक ऑयल. इट्स नॉट ए ग्रेट ऑयल, बट हाँ अगर आप लेना है तो मस्टर्ड ऑयल इज़ अ गुड ऑयल. इट इज़ वेरी यूजफुल. और देसी घी या मक्खन, इनफैक्ट 7 जनवरी को जो रॉबर्ट कैनेडी ने अभी नई यूएस की गाइडलाइन हेल्थ की दी है, उसमें नंबर 1 में उसने बटर लिखा है. ऑल्दो उसके साथ चिकन भी लिखा है, पर वो ठीक नहीं है. बट द फैक्ट इज बटर इज़ गुड, होम मेड बटर इज़ गुड, बट उसको पचाना है. लिमिट उसकी 20 ग्राम से ज़्यादा पूरे दिन में ऑयल की, फैट की नहीं होनी चाहिए. बट आपके माध्यम से, आप मैराथन रनर हैं तो याद रखिए कि आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं. आई विल टेक हाफ ए मिनट टू टेल. आई हैव ए बॉय हु आई सॉ व्हेन ही वाज 13. मैंने उससे कहा तू कभी मोटा मत होना लाइफ में. अब वो 30 साल का हुआ तो लंदन में मैराथन दौड़ता है. अभी मिलने आया और आके कहता है अंकल मैं आपको सिर्फ दिखाने आया हूँ, स्लिम लाइक दिस. मैंने कहा मैंने क्यों कहा था उस समय? तो बोला पता नहीं. मैंने कहा तेरा हेल्थ चेकअप कराते हैं. उसका कोलेस्ट्रॉल 198 था एंड ही इज़ ए मैराथन रनर 42 माइल्स. मैंने कहा तेरे फादर बैठे थे, उनको ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़, मदर के गॉल ब्लैडर में स्टोन थे. तो द फैक्ट इज इफ़ ही वॉज नॉट रनिंग ही वुड हैव बीन 30 पे उसको ब्लड प्रेशर हो जाता, हाइपरटेंशन के साथ साथ सारी बीमारी. बट ही वॉज रनिंग. सो ऑल ऑफ यू फॉलो मैराथन रनर इफ यू हैव ए डिफेक्टिव जनरेशन. Thank you. The lady from the back. Last 2 questions, one and हम एक far right चलेंगे, Sir, please. excellent presentation. I'm Dr. Nikita. I'm a gynecologist and infertility specialist. Sir, as you said that most of the diseases have genetic basis. So, but the awareness among the population is not there. So that is number one. How do we increase the awareness? Especially among the young, and as ma'am said, what we are seeing in the Gen Z, so they are ultimately again going to become parents and grandparents. So that is number one. How do we increase the awareness? Just Secondly, we can allow one question, So- please. We are in really continu- running very just short in of time. Very continuation, sorry. But in Very the other sorry. ways, aren't we increasing Only stress? one question, please. Very sorry. Very interestingly, another very recent paper, maybe 3 days ago, कि अगर आप ब्लास्टोसिस्ट लें, जिससे हम लोग पैदा होते हैं, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट, अगर मदर को आपने एक्स्ट्रा फैट या शुगर दी, 6 डेज से फैटी लिवर के जीन्स बनने, 6 डेज ऑफ एम्ब्रियो. So it is a transformation which happens as early as that. As a gynecologist, you have 2 main responsibilities. और इसमें किताब में पूरी कहानी है गायनेकोलॉजिस्ट की. उसने मदर को बच्चा पैदा होने से मना किया कि जब तक तुम पतले नहीं होगे बच्चे पैदा नहीं करना. They became the girl. So for you are the most important person. Make sure that nobody goes without a health advice and the mothers are healthy, so the boy and the girl are healthy. Thank you. Last question from my far right, please. खड़े होकर. Good morning, sir. I'm Shub. So, as you said, you talked about the parents that they should have the genetic test or
they should be fit before giving a birth to a child. So, like, what would you say to a child? Like, I'm in my Gen आप Z सही phase. बात बताई है आपने। Yeah. देखिए मैंने नहीं कहा मदर को टेस्ट कराए, फादर को टेस्ट, ये तो आप लोगों के लिए है। जैसे आपको लड़की ढूंढनी है, मतलब शादी करनी है या मतलब फ्रेंडशिप करनी है, तो उसका सबसे पहले SGPT कराना, ब्लड टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, वैसे ही SGPT। अगर उसका SGPT लड़की का 19 से ज़्यादा और लड़के का 30 से ज़्यादा, वो शादी के लायक नहीं है। कहोगे यार कैसा डॉक्टर है यार, शादी बनवा दी है मेरी, और लड़की कहेगी कैसा आदमी है यार, इसने तो बिल्कुल गड़बड़। बिकॉज those who have an SGPT above, this is a liver inflammation test which everybody should get done। 10 रुपए में टेस्ट होता है। अगर SGPT हाई, आप लोगों ने नहीं कराया ना, ये अभी करा देंगे आपका, राघव जी करा के देंगे सब लोगों का। अगर SGPT सबका करा देना, पैसे बराबर आ जाए। अगर SGPT हाई है, that person has inflammation in the liver and then both the partners must know यार हम डिफेक्टिव पीस हैं, हम रेड लेन में हैं या येलो लेन में। रेड लेन में मतलब SGPT हाई, रेड लेन से येलो में है, पेरेंट्स हैं, हम नहीं हैं। देन द जीन पत्री, द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड, then it is important to have gene patri, and this will happen in future in 5 to 10 years. Gene patri will become more important than janam patri, and I do hope everyone reads. There is a 71 page पे उसके गर्दन में काली लाइन है, तो बंदा बैठा। आज सुबह एक मुझे मिले बंदे जब मैं नाश्ता कर रहा था, और उन्होंने मुझे कहा आप ही के उसमें ऑर्गेनाइजेशन में हैं, and he told me, he is right there. He says कि सर मेरे को ये काली वो गर्दन थी तो मुझे किसी डॉक्टर के पास भेजा और मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था, और उसके बाद से रीडिंग बुक 10 किलो वजन घट गया। मैं चाहूँगा, आई एम नॉट देयर एज अ डॉक्टर, आई एम हेयर एज वन ऑफ यू, बिकॉज आई हैव सीन लाइफ द अदर वे। हर अगला पन्ना हम नहीं पढ़ पाते, कुछ डॉक्टर्स पढ़ पाते हैं, और इसलिए अगर हम अगला पन्ना देख लें तो आज योर टुमारो will depend on the choices you make today. And do not say, because a difference between choice and habit is, आज मैं मना कर दूंगा, but habit will be I accept wrong choices to have a bad future. Sareen जी के लिए तालियां please everybody. No, with Yes, his Ashok ji. permission, I want to disclose one thing, कि वो डॉक्टर्स के लिए लोग ये कहते हैं कि किसी ने डॉक्टर से कहा कि भाई आप ये सारी सलाह देते हो तो आप खुद क्यों नहीं करते। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो ऐसा है, वो जो साइन बोर्ड होता है ना या माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन आपको बताता है कि आपको किस तरफ जाना है, वो खुद तो नहीं जाता। बट डॉक्टर साहब की ये खासियत है दैट ही एक्चुअली प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस, एंड दैट्स व्हाई ही इज सो फिट। Wow. Well, this is going to be a never-ending discussion, but all good things come to an end. But one statutory warning. I am not delivering this warning. Mark Twain said, be careful when you read a health book, because you may die because of a misprint. but there are no misprints in this book. Okay. Okay, so it's a good news for everybody. We have time for couple more questions. पीछे से वो सर काफी समय से हाथ खड़े कर रहे थे, वहां से we'll try to cover. सर, हाँ. भगवान की दया से हिंदी एडिशन आ गया है, आप खरीदिए, आ गया है। मंजुल पब्लिशिंग हाउस पे आपको मिल जाएगा, आप खरीद लीजिएगा। The books are available in the stall. बाहर जो book stall है, वहाँ ये book available है। And sign भी करवा लीजिएगा। Yes, वहाँ पीछे माइक पास कर दीजिए प्लीज। हिंदी एडिशन आ गया है, मराठी आ गया है, Volunteers please. और we have the पंजाबी एडिशन, 4 editions। तो अभी कुछ टाइम ट्रांसप्लांट हुआ है, तो we have some more माइक आ time. गया है। लीजिए। Yeah. We have the mic for you, sir, on your right. It's on, बोलिए आप। Please hold the mic closer.
Well, this is Thank you. also discussed in the book about milk. Milk is the best restorative biological product ever made. Milk has a regeneration capacity. What I am saying, every word has a meaning because these are taken from best journals, Science, Nature, New England Journal, like that. So, the milk has properties of regeneration. Milk has property of the best sleep, and there is no confusion in my mind. Everybody should have milk, and there is no doubt that whatever theory you are saying is incorrect. Clearly, if you have milk allergy, then don't take. Milk is a wholesome, good food. Thank you. Sir, something about tandem mass spectrometry. Yes. Well, it's not part of the book, but what you are saying has a lot of science in it, and mass spec can always be helpful. If you are wanting to find out minerals or metals, or you are finding out the structure of the tissue, tandem mass may be a very useful method. But for general people, do you know what percentage of your total body should have fat? Raise hands. Anybody? 20 पैसे से ज़्यादा बॉडी में अगर आप 100 मतलब 10 किलो के हैं तो उसके अंदर 2 किलो फैट हो सकती है. Most people just do a simple body composition analysis. If your body has more fat, it is unhealthy. How much should be your muscle? How much should be your bone density? Everybody should get your composition of the body analyzed, and this is mentioned very clearly in the book. अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात इसमें जन्म पत्री और जीन पत्री पे है. पुराने ज़माने में जब होता था ना राजा महाराजा, तब देखते थे कि यार इस नक्षत्र में इस समय में अगर you have the sex and then you have the child, तो इस समय में बच्चा अच्छा पैदा हो. वो बड़ी अच्छी साइंस थी. आजकल कोई नहीं देखता कि कब बच्चा अच्छा पैदा होगा और कब बच्चे को. एंड गायनेकोलॉजिस्ट कैन हेल्प इन दैट. यू मस्ट डिसाइड द बेस्ट टाइम, बेस्ट हेल्थ फॉर योरसेल्फ. दूसरा एक इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जो मैं चाहूँगा. इट्स ए रियल स्टोरी ऑफ ए पुलिसमैन, एंड आई मेट सम very senior police officer yesterday. I don't know if he is here or not. He represents the whole of Madhya Pradesh, and he says he will come. The story is this policeman who used to come, he was representing a state and was never able to lose weight till the time I told him that in Washington, 7 out of 10 people in the US police are overweight. Why don't you make a change? He started making a change. From 104, he came down to 88 or so. And what he did, it's a real story, he made every police station healthy. उसने हर जगह पे एक्सरसाइज लगाया, एंड देयर इज़ ए जेने. उसको थायराइड थी. कहता कि सर मैं मोटा हूँ बिकॉज आई एम हैविंग थायराइड. एंड आई सेड अगर आपकी बॉडी इतनी बड़ी है, थायराइड इतना है, दिस थायराइड इज़ गुड फॉर दिस बॉडी, पर आपकी बॉडी इतनी बड़ी हो गई तो ये थायराइड छोटा हो जाएगा. यू रीसाइज योर बॉडी or get a thyroid supplement. He understood this simple language कि I would resize my body, and now he is off thyroid medications. Thank you to the gentleman in the green shirt. Please pass the mic to him. Sir, as aging sportsmen, it's gradually and slowly, we've played sports all our life. As aging sportsmen, our body takes a lot of time to recover. The next day it becomes a problem to play. So can you please tell us? There is no aging sportsman. Milkha Singh कितने साल रहा? There is no sportsman. You stop playing sports, but a sportsman never ages. No, I know, but like I'm talking about like we continue to play sports, but like the next day becomes very tiring. So how do we? What do we do to sort of? I really disagree on this part. A sportsman never ages. You can always play, but yes. I would say that training and rest both are very necessary. If you are able to have your muscles ache, it means you have achieved lactic acid production, and that means you are healthy. If you are unable to have your muscles ache, मतलब सुबह आप जाओ जिम में या खेलो और यार सर पैर दुख रहे हैं, वो पैर दुखना पूरे दिन चलना चाहिए. And that is the reason that you will make hormones called endorphins, and you will have very good sleep.
पर अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे कोई फायदा। In fact, I entirely agree with you, and I want to share with you and the audience that I have a friend who is 66 years old. 10 years ago, और अच्छा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, कभी वॉक नहीं किया, कभी दौड़ने नहीं किया, कुछ नहीं। 10 साल पहले he met Fauja Singh. Fauja Singh, as all of you know, was a person who ran even at the age of 100. Something happened to this man, and today there is not a single marathon in the world that he has not run. So, but Doctor, one anxiety which I think many of us have is that increasingly we are hearing that people, youngsters in the age of 30, 35, 40, they are suddenly collapsing. That's what I said. That is what I said. Because you have not trained yourself early enough, I think you should start that early. But whenever there is a parental bad history, the child and the young man must be very careful. You should get complete checkup done and gradually increase your training schedule, not to extremes immediately. Well, let's give it up for Mr. Serene and Mr. Ashok Lavasa. That was some really scientific medical wisdom. The books will be available at the bookstall outside. We began this session by asking everyone, how often do you truly feel proud of yourself? Siddharth here definitely does because he has an endorsement from Dr. Serene now. वो जब से आपने उठाया उसके बाद तो आप मेरे favorite बन गए. Jokes apart, but that was really an enriching session. And to felicitate our guests, I would like to invite the director of the festival, Mr. Raghav Chudraji, on stage to present them a token of love and memento on behalf of the Bhopal Literature and Art Festival 2026. मैं जानता हूँ आप सभी के बहुत सवाल बचे हुए हैं and मैं जानता हूँ I always have to be the bad guy, but don't worry, वो यहाँ रहने वाले हैं. आप उनसे मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा. For now, we have the BLF memento on stage. The memento is created by Padma Shri Durga Bai Vyamji, titled Little Gorlaiya, which is a gone tribal tale. You can see a tiny bird blessed by the tribal god Burradev, which is the mascot and the memento of the Bhopal Literature and Art Festival 2026. Let's give all the gentlemen a large round of applause, everybody. That was, as I said, a much-needed session. And please remember to buy the books and get it signed by the author. Yeah, that's a golden chance. अरे यार बोलने दो उसको.